ऊंची आवाज बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए कितने जन आनंदित है आप में से? अगर आप आनंदित है तो आप ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से आज जब आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनोगे, मेरा बिलीव है आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती हैं, आपके विश्वास को बढ़ाती हैं। तो जब आप गवाहियों को सुने पूरे ध्यान के साथ, आत्मा में रहते हुए कि परमेश्वर ने किस तरह से इन लोगों की जिंदगी में काम किया, इनको हील किया, डिलीवर किया, क्योंकि डिलीवरेंस वीक्स चल रहे हैं। जिस तरह परमेश्वर ने लोगों को डिलीवरेंस दी है, चंगाइयाँ दी है, आज जितने दिन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज आप यहाँ से बड़ी डिलीवरेंस को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो जोर से तालियों के साथ एडवांस में अपनी गवाही के लिए, अपने मिरेकल के लिए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर जी मेरा नाम विशाल है, मैं जलंधर का ही रहने वाला। 2019 में दिसंबर महीने में आपके साथ एक घटना हुई थी, आप खुद बताएं उसके बारे में, क्या हुआ था आपको? ब्रदर जी मैं 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਚੀਨੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਉਹ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਝਟਕਾ ਵੱਜਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਲੱਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਾਟਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਬਜ਼ ਦੱਬੀ ਗਈ ਆ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਸਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੁਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੋਲੀਓ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੋਲੀਓ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। और आपने कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੈਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ, ਪਿਮਸ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈਆਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। आपको ये प्रॉब्लम कितने साल तक रही थी? ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਹੈ। फिर काम कैसे करते थे उन इतने साल के अंदर? ਕੰਮ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ। ਝਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਘੋੜੀ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। तो परमेश्वर ने कैसे चंगाई आपकी जिंदगी में दी आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਚਰਚ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2022 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। 2022 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 2024 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। और आपके ऊपर 15 सितंबर 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ जी। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। और आप बताएं, जब क्योंकि उसके पहले आपकी हालत ऐसी थी, ना तो चला जाता था, भागा तो बहुत दौर की बात है। हाँ। जब ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद आपकी ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ।
ਖੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਸ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा, पहले आपसे चला भी नहीं जाता था ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और ਬ੍ਰਦਰ अभी ਜੀ, अब रेस लगा ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ आप ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। करके देखे जरा, भाग के दिखाइए एक बार सबको। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया, इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग हीलिंग के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज भी जो लोग ऐसी प्रॉब्लम्स के नीचे हैं, आपको रीढ़ की हड्डी के रोग है, टांगों के रोग है, नसें ब्लॉक है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, डॉक्टर ने चाहे कुछ भी क्यों नहीं बताया, आप जानते हैं आपका फेथ अगर परमेश्वर के ऊपर बना हुआ है तो बीमारी रह नहीं सकती आपकी जिंदगी में। आज जो जन यहाँ पे मौजूद है, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आज चाहे प्रॉब्लम कैसी क्यों नहीं है, आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हालेलुया सबसे ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू हालेलुया, जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस हीलिंग के लिए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता है। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब अमृतसर से। आपकी टेस्टिमनी की जब 2022 में आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के ऊपर आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, कैसी लाइफ थी आपकी? वो हमारी मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस रहा, लड़ाई झगड़ा होते थे घर में, और सपने आते थे मुझे सांप के जैसे, जैसे गंदे पानी के, खराब फल के, ऐसे सपने आते थे। तो उसके बाद बताएं, जब आपने बेबी के लिए प्लान किया तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, क्या शाद- प्रॉब्लम आई आपको? शादी के 3 महीने बाद मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई और वो 1 महीने में ही कंटिन्यू रहा, फिर मेरा मिस कैरेज हो गया। आप बता रहे कि जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के बीच आपको शैतानी सपने आते थे, हाँ जी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपका मिसकैरेज हो गया। जी बिल्कुल। तो उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी ट्राई की आपने? जी, वो 3 महीने बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई और वो 2.5 महीने कंटिन्यू रहा, और उसके बाद फिर सेम मुझे प्रॉब्लम हुआ ड्रीम के, और जैसे मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, और एज इट इज़ मुझे फिर वैसा ही हुआ, मेरे ड्रीम के अकॉर्डिंग मिसकैरेज हो गया। कि 2 बार आप प्रेग्नेंट हुए और दोनों बार शैतानी सपने आए जी और सेम आपका मिसकैरेज हो जाता था। जी। तो आप बताएं कि उस समय डॉक्टर भी, आप बता रहे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपको भी कोई समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हो रहा है, तो उस जी। समय घर में माहौल कैसा था? पर्सनल लाइफ बताएं कि क्या उस समय महसूस होता था आपको? घर में परेशानी था कि ये प्रेगनेंसी ठहर नहीं रहा और ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा था, और झगड़ा लड़ाई होता था ऐसे, मतलब ऐसे परेशान रहते थे कि क्या बात है, क्या हो रहा है। ड्रीम के बारे में तो मुझे वैसा पता नहीं था, जब बाद में मुझे पता लगा, और डॉक्टर भी दिखाए थे 2 जगह पे, मेडिसिन भी लिए, तो फिर कोई उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। क्योंकि डॉक्टरी आपका ट्रीटमेंट भी हुआ लेकिन उससे भी जी। कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। तो उस समय बताएं सिस्टर, फिर आपने जब आप 3rd टाइम प्रेग्नेंट हुए तो वो बताएं कि फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं मिनिस्ट्री से पहले से ही जुड़ी थी, और जब अजनाला क्लोसट हुआ था तो हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे जब मास प्रेयर हुआ तो उस टाइम पे मुझे ये डिलीवरेंस मिला था। तो उसके 1 हफ्ते बाद ही मैंने जब चेक किया, मेरे प्रेगनेंसी पॉजिटिव रहा, और उसके फिर 2.5 महीने बाद मैं यहाँ आई, मेरी प्रेगनेंसी की सेफ्टी के लिए मैंने लेहन कराई मम्मा जी से। 27 जुलाई को 2023 को परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। जी। तो आप बताएं कि आपने बोला कि 2 बार आप प्रेग्नेंट हुए थे और दोनों बार आपका मिसकैरेज हुआ जी। शैतानी सपनों के कारण। जी। तो आप बताएं कि जब आप 3rd टाइम प्रेग्नेंट थे, आपका फेथ था कि अगर मैं लेहैंड करवाऊंगी, प्रार्थना करवाऊंगी, परमेश्वर मुझे सेफ रखेगा। तो आप बताएं कि जैसे आपने वो लेहैंड कराया परमेश्वर की दासी के द्वारा, तो उसके बाद बताएं फिर क्या हुआ? फिर मेरा प्रेगनेंसी स्मूथली रहा, 9 महीने में पूरा सेफ्टफुली रही, सेफ्टी से रही, और मुझे नॉर्मल डिलीवरी के साथ ही खुदा ने ब्लेस किया। मिसकैरेज कोई नहीं हुआ? नहीं। और परमेश्वर ने क्या दिया सिस्टर आपको? बेबी बॉय के साथ मुझे ब्लेस किया है, और ये भी है कि हमारा हार्ट डिजायर था, मेरा 24, मेरे हस्बैंड का भी 24 मतलब बर्थ का डेट है, तो हमने प्रे किया था बाबा हमें 24 चाहिए, हमारे बच्चे का भी। तो हमारे बच्चे का भी 24 है, यही महीने में 1 साल का हो जाएगा जिब्राइल,
और उसका भी 24वीं डेट में बहुत बहुत खुश हूँ और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे इस मिनिस्ट्री से चुना और मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी सारे मेरे लड़ाई और लज्जा दूर किया क्योंकि जब मेरी बेबी नहीं थी तो मैं सबकी बेबी देख के दुखी होती थी कि मेरे भी गोद प्रभु कब भरेंगे मैं अपने बेबी को कब गोद में लूँगी हमारे साथ जितने की भी शादी हुई उनके सब बच्चे हो गए तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट सुनने को आता था कि आपका कब होगा तो मुझे विश्वास था कि खुदा मुझे ज़रूर ब्लेस करेंगे बच्चे से अपने और खुदा ने सच में हमारे एक एक डिजायर को पूरा किया और मुझे हमारे बेबी के साथ ब्लेस किया तारीफ करें थैंक यू चीजस बोले सब ऊंची आवाज के साथ चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम में हो चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम में हो चुपचाप खड़े रहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम में हो डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के हालेलुया हालेलुया 2 मिसकैरेज के बाद परमेश्वर जैसे इस बहन के ऊपर लेहन प्राप्त नहीं हो परमेश्वर ने नाम थराई को खत्म किया कोई शैतानी सपने नहीं आए कोई मिसकैरेज नहीं हुआ और परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें यहोवा राफा के लिए चंगा करने वाले परमेश्वर के लिए ऊंचा करने वाले के लिए थैंक यू जीसस बोले उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन आइए अब अगली गवाही को सुनते हैं सिस्टर कलावती देवी जो कि वेस्ट बंगाल से हैं तो आइए वेस्ट बंगाल से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ये बहन की गवाही है कि 20 साल पहले जब 20 साल की एज थी तब इन्होंने नशा करना शुरू किया था और वो नशे डे बाय डे इनके बढ़ते गए तो वेस्ट बंगाल ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में सबको जय मसीह की मेरा नाम अंजलि है और ये मेरी बुआ है और महेशतला की रहने वाले महेशतला ब्रांच से आज हम इन मैन की गवाही को देने जा रही हूँ 25 साल से मेरी बुआ गलत संगति में जाने की वजह से नशा करती थी ये एक दिन में 5 से 6 पैकेट ये खैनी का नशा करती थी और 3 से 4 पैकेट तम्बाकू का नशा करती थी और हमारे घर वाले इनको मना करते थे लेकिन ये नहीं मानते थे और इनके हस्बैंड भी इनको रोकते थे लेकिन ये उनकी भी नहीं सुनते थे ये मैं नशा छोड़ना चाहते थे लेकिन ये छोड़ नहीं पाते थे ये जब ड्यूटी पर जाते थे तो वहाँ पर भी नशा करते थे आसपास के लोग इनको बोलते थे और इनको शर्मिंदगी महसूस होती थी और घर वाले पहले से ही अंकुनल मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने इनको चर्च के बारे में बताया और फिर ये बहन लगातार ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे एक दिन ये बहन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे संडे की और उसमें जब प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया तो अब ये बहन पूरी तरह से नशे से आज़ाद है आप कोई नशा नहीं करते इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास जी का धन्यवाद करते हैं सभी को जय मसीह सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें ये जॉब करते थे और 25,000 इनकी सैलरी थी हमेशा अपने पर्स में भी ये नशा रखते थे स्टाफ पर्सन भी इन्हें मना करते थे फैमिली रोकती थी पर ये इनकी तलब इनको नशे की इतनी लगती थी पर ये इनकी बात नहीं सुनते थे और जब इनको चर्च के बारे में पता चला इन्होंने ऑनलाइन लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया 16 जून 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया कहते परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ उसी समय बॉडी में गर्माहट सी हुई परमेश्वर ने मन बदला और उस दिन से हर एक नशे से उस बड़ी शर्मिंदगी से खुदा ने इन्हें आजाद किया फ्री किया है सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले क्योंकि आपकी जिंदगियों को केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह बदल सकते हैं आपकी लाइफ से शर्मिंदगियां जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम समस्याएं उनको आपकी जिंदगी से सिर्फ यीशु मसीह निकाल सकते हैं उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस टेस्टमनी के लिए इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तारीफ करें सब जन इस बहन का नाम राजप्रीत कौर है और ये मोगा शहर के रहने वाले हैं 2020 में आपके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए थे गंदे सपने आना ऐसी चीजें आपके साथ होना शुरू हुई थी आप खुल के बताएं क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ
ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੱਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਵੀ ਸੁਸਾइड कर ला चंगा है ते पेन बहुत ज्यादा हुंदा सीगा आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे हाँ जी ब्रदर कैसे कैसे ख्याल मन में चलते थे उस वक्त यही हुंदा सीगा भी मैं मर जा मैं एक बोझ बन गई घर दे ते और इसी वजह से आपने 6-7 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे दवाइयां चेंज करी लेकिन वो डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा था हाँ जी तो ब्रदर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया कैसे डिलीवरेंस हुई आपकी उस तो बाद मेरी फैमिली प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਚੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਵੜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ और जब ये चर्च में आए तो 25 जून 2023 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी जिसके द्वारा चंगाई छुटकारा इनकी जिंदगी के अंदर एंटर हुआ उस प्रेयर को भी हम देखते हैं का दीप जला सबके लिए जीवन का दीप जला सबके लिए पापी के पाप लिए उसने उठाया पापी के पाप लिए उसने और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ उसके बाद आपकी जिंदगी में ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹਲਕਾਪਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ उसके बाद से कोई डिप्रेशन नहीं है नहीं कोई अटैक नहीं है नहीं कितने समय से बिल्कुल आजाद है अभी आप ਮੈਨੂੰ 1 साल ਤੇ 7.5 महीने हो गए और बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं आप हाँ जी ब्रदर सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए इस छुटकारे के लिए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए इस चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं सिस्टर विशु की ये गवाही है और ये अबोहर चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव हैं और इनकी गवाही की मार्च 2022 में ये बहन घर की दूसरी मंजिल पर थे और वहाँ से ये नीचे गिर गए थे जिस कारण ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुके थे तो आज हमारे साथ लाइव हैं सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में हीलिंग को दिया है सारे जी मेरा नाम विशु है मेरी एज 15 साल है मैं छत तो डिग गई थी दूसरी मंजिल तो और मेरा मैं बेहोश हो गई थी मेरे नक के विच मूँह के ब्लड आना शुरू हो गया सीगा मैंने डॉक्टर को लै गए डॉक्टर ने दस्सिया कि मेरे ब्रेन के विच ब्लड क्लॉट जम चुके हैं ते मेरे ब्रेन विच स्वैलिंग आ चुकी है साडा फेथ परमेश्वर ते सी पहला तो ही एएनएम मिनिस्ट्री नाल जुड़े सी ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਟੱਚ ਹੋਇਆ और तरह ही मैं परमेश्वर को थैंक्स करते हैं परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी का दिल तो धन्यवाद करते हैं सारे जय मसीह तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए इस हीलिंग के लिए आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में चंगाई दी तो 7 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन के बाद से पूरी तरह से हील है सब अपने हाथों को उठाएं इस चंगाई के लिए इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए तो आप बताएं ब्रदर क्या नाम है आपका भोला नाम है सर कहाँ से आए आप बिहार से आपकी टेस्टमनी की 24 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था यस तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो नशे कैसे स्टार्ट हुए कैसी लाइफ थी आपकी सर कहना था कि हम 2001 से बाहर जाने लगे और जाते जाते वहाँ पे गलत लोग के संगति पड़ गए हल्का हल्का नशा लेते रहे उसके बाद 2004 में शादी हुआ नशा कंटिन्यू बढ़ा हुआ था तो आप बताएं ब्रदर जब आप नशे में पड़े आप बता रहे कि छोटी उम्र में गलत संगति में आप चले गए थे यस तो कौन सा आपने नशा करना स्टार्ट किया फिर सर बाहर में सभी किए गांजा भी भांग तम्बाकू गुटखा सिगरेट सभी किए आप बता रहे कि एक दिन में आप 3 बोतल शराब की पीते थे यस 4 पैकेट गुटखे खाते थे यस और आपकी लाइफ पूरी तरह खराब होती जा रही थी यस तो उसके बाद जब आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद बताएं आपने क्या किया फिर मैरिज हुआ तो हम बहुत पैसे कमाने के बाद अपनी बीवी को
मतलब बाल बच्चे के पालन पोषण में कमी होता था, हमको पैसे तो गुजारा नहीं हो पाता था। तो हमारे वाइफ को चाची ने बताया कि तू नशे कर बनाओ और इसको बेच, और इसके लिए तुम्हारे बाल बच्चे की गुजारा होगा, बढ़िया पैसा बचेगा। अच्छा, आपको किसी ने बताया कि आप नशा बेचना स्टार्ट करो? यस। आपकी वाइफ को बताया किसी ने? यस, हाँ। तो आप बताएं सिस्टर, आप बता रहे हैं कि आप नशा बनाकर आप बेचना शुरू कर दिया था आपने? 2009 में हम दारू बनाने लगा। हम बहुत ही, मेरे पति गया है बाहर गया है, तब फिर महीना लगेगा तब न भेजेगा। तब मेरी सास कहा ने कि मैं बाल बच्चा छोटा छोटा है, अब तो पढ़ा लिखल नहीं है, हम कल नहीं कुछ हम पढ़ा लिखल नहीं कि हम कुछ बिजनेस कर सकें लिख सके हैं। तब कहा ने कि आप नहीं है तो हम गरीबी हाल ने हम हाल रहा है, बना रहे हैं दारू, जैसे फिर आप फिर बनाओ और बेटा बेटी के ऐसे मेरे पोसो। तब मेरे पति भेजेगा तबे आसरा कितना करेंगी। तो हम वो सोच लिए हैं कि बनाए कि नहीं बनाएंगी, मेरे पति का कहेगा, मारेगा कि पीटेगा। तब फिर हम मेरे पति से चुपे चुपे दारू बनाने लगे। हम इसको नहीं कहना कि हम दारू बना रहे हैं, फिर दारू बना रहे हैं। फिर हो गया है 6-7 महीना हो गया है, तो मेरे पता चल गया कि मेरे दारू बना रहा है हमको बीबी। ये सिस्टर बता रहे कि इनके हस्बैंड इतने ज़्यादा नशे करते थे, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनकी वाइफ को किसी ने बताया कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अच्छा गुजारा हो, तुम नशा बनाना स्टार्ट करो। तो इन्होंने दारू बनाना उसे बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो आप बता रहे कि ब्रदर उसके कारण आपकी टोटल लाइफ खराब थी, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी। यस। बच्चों को मारते पीटते थे आप। यस यस। और बताएं आपकी कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? सर, दारू कारण में कभी कभी नहीं मिलता था कोटा, तो हम अपनी वाइफ के भी मारते थे। उसके बाद हम बहुत छोड़ने की कोशिश किए, बाल बच्चा सियाना होने लगा, पढ़ने भी लगा। हमने कौन जाके जो माल देता था उससे जाके हर हिसाब करते थे कि नहीं अब नहीं बनाएंगे, हमको बाल बच्चा बड़ा बड़ा हो गया। सिस्टर आप तो रो रहे हैं, आप बताएं कि क्यों रो रहे हैं आप? कैसी हालत थी उस समय आपकी? मैं दुखी था। शराब बनाती नहीं, गांव टोले के आते हैं शराब पीने के, दारू नहीं रहते हैं, बहुत उल्टा पलटा बोलते हैं। हमको बहुत गरान लगती कि हम का भविष्य किए मेरे खुदा, मेरे हम दारू बना रहे हैं, हम इस दारू गंदा चीज छोड़ दूँ। मेरे बेटा बेटी जवान हो गया, मेरे हमको बात नहीं, मेरे परिवार आता है बहुत आते से बहुत हमको शर्मिंदा लगता है। हम कैसे खाना देंगी बना के, हम दारू बेचेंगी खाना देंगी, हम तो मुँह झुका झुका के हाँ हम खाना बना के देंगी। बहुत हमको ही परिवार है लिखल पढ़ल है आ रहा है, बाकी हमको गारान लगता, बहुत हमको शर्मिंदा लगता है, कैसे हम देंगी खाला नहीं। आता है मेरी बहन के दामाद कहा कि नहीं बनाओ मौसी, कल कैसे पोसेंगी हम मेरा बेटा बेटी, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, हम शैतानी से हरकत है, बहुत डॉक्टर ही जाते हैं। ये बहन बता रहे कि इनकी इतनी ज़्यादा पैसों में हालत इनकी खराब थी, आर्थिक स्थिति, इनका दिल नहीं करता था कि मैं दारू बनाकर बेचूं, क्योंकि उन्हीं हाथों से दारू बनाते थे। ये सोचते कि उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को खाना कैसे बनाकर दूं, इतनी शर्मिंदगी थी, लेकिन फिर भी करना पड़ता था। हस्बैंड इनके जो थे इन्हें मारते पीटते थे, बच्चों को मारते पीटते थे, लाइफ पूरी तरह से खत्म थी। तो आप बताएं ब्रदर, आपकी इतनी ज़्यादा खराब आपकी हालत थी, तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं नशा छोड़ दूं, अपने परिवार को देखूं? मैं नशा छोड़ देते थे, हम महीना भर भी नहीं पीते थे। कभी कभी हम हर हिसाब करके आते थे कि अब बनेवे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे महीना दिन होता था और सारा हाथ खाली हो जाता था कि क्या करूं कहाँ जाऊं, और फिर दोबारा बनाने लगते थे। ऐसे ऐसे करके 3-4 बार हमारे साथ हो गया, नशा नहीं छूट रहा था। मगर नशा आपसे बिल्कुल छूट नहीं रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं छूट रहा था। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में, ऐसी गंभीरता में आपको फिर अंकुर रलाम नशे के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला फिर आपको? सर 2022 में बिहार में ब्रांच ओपन हुआ था, उसके बाद हमरे तो पता नहीं था, लेकिन यहीं से लोग रह के गए काम करके, उन्हें ढूंढ के आया कि बिहार में ब्रांच खुल गया है। हम कहे ठीक है चलो,
जैसी है वहाँ गए और लगातार जुड़े रहे और प्रेयर माउंटेन में जुड़े रहे। उसके बाद अब बता रहे कि इनको किसी ने बताया कि बिहार में अंकुर मिनिस्ट्री की ब्रांच ओपन हो चुकी है। इनके किसी रिश्तेदार ने बताया, उन्हें बोला कि चल तो चर्च जाकर देख, ब्रांच में परमेश्वर तेरी वाइफ को और तुझे डिलीवर करेंगे, ऐसी लत से, ऐसे बिजनेस से परमेश्वर तुम्हें आजाद करेंगे, तुम्हें ब्लेस करेंगे। तो ऐसी हालत में आपने ब्रांच में आना शुरू किया। Yes. और लगातार आते रहे आप। Yes. और प्रेयर माउंटेन भी सुनते रहे। उसके बाद फिर 12 मार्च 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इन दोनों की लाइफ को चेंज किया, इनके परिवार की लाइफ को। तो आइए पहले के लिए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। खुदावंद का रूह मुझसे कह रहा है, जो भाई नशा करते हैं जस्ट अपने सिर पे, माथे पे इस तरह से हाथ रखे जैसे मैंने रखा हुआ है अपने माथे के ऊपर, इस तरह से माथे पे हाथ रखें और रिलीज करें उस नशे की आत्मा को फायर से। कैच फायर बोले, नशे की आत्मा कैच फायर। कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती, कोई दुष्ट आत्मा फायर में नहीं रह सकती। याद रखना, कोई जादू टोना फायर में नहीं रह सकता। कैच फायर, रिलीज करो होली गॉस्ट। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच। और ब्रदर, जैसे हमने सुना वीडियो में देखा कि जैसे परमेश्वर के दास डांट रहे थे नशे की आत्मा को, तो वही प्रार्थना आपने उस समय रिसीव की। Yes. तो आप बताएंगे जैसे वो वर्ड आपने सुने, आपके कानों में वो प्रार्थना पड़ी, तो उसके बाद बताएंगे क्या बदलाव आया आपके जीवन में। उसकी जो सुने फायर तो दम हल्का जैसा लगा कि नहीं अब मैं छूट जाऊंगा। यहीं से हम समझ गए कि यही जीवित खुदा है जो छोड़ाने वाला है। इसलिए मैं ठान लिया कि नहीं, अब नहीं पीऊँगा और नहीं बनाऊँगा। ऐसे करके मैं घोषणा करते रहे घर में लगातार, और बीवी भी कहते रहे कि अब नहीं बनाना है, नहीं बनाना। और उसी करते करते पहले हम ही छोड़ दिए पीना, तो लोग दूसरे से जैसे उसमें चखना पड़ता है कि कैसा है, कैसा होना चाहिए। तो हम बिल्कुल छोड़ दिए कि नहीं, हम नहीं पिएंगे। कुछ दिन के बाद हमरे शर्मिंदगी होता था बेचते बेचते कि कहता था कि आज ऐसा है, कल वैसा है। तो हम कि नहीं, अब बनेबे नहीं करेंगे, अब जैसा भी रहे हम बनेबे नहीं करेंगे। अच्छा, आपने दारू बनाना भी उसी समय छोड़ा? तो हम छोड़ दिए, सटले सटले सब छोड़ दिए हम। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? आज हमको 2 साल के करीब एकदम हो चुका है, एकदम सब छोड़ दिए हैं। पीना भी छोड़ दिए हैं, नशा करना भी छोड़ दिए हैं, बेचना भी छोड़ दिए हैं। और लोगों को भी कहते हैं कि भैया तू जीवित चर में जुड़ जा, तू अभी भी फसल है, तू छूट जाएगा, हमारे तरफ तू भी आज़ाद हो जाएगा। कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं होगा, इसमें आके तो देखो। ऐसे ऐसे कहते कहते बहुत लोग आ गए हैं हमारे गांव में, समझो कि तो पूरा टोला कवर हो चुका है। थैंक यू जीसस, बोल दो सब ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप ध्यान से इस भाई के बात को सुने, बोले कि अब जो लोग इनके पास नशा लेने के लिए आते थे, अब उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार बताते हैं। उन्हें बोलते कि अगर तू भी मेरे साथ चर्च जाएगा, परमेश्वर तुझे भी डिलीवर करेगा। और कितने लोगों को अब चर्च लेके आ चुके हैं? बहुत जुड़ गए। हमारे जितना परिवार था, मेरी बहनों, साड़ू, सारे गांव तो एकदम पूरा, हमारे जितने हमने जो अपने टोला था, टोला में एगो हेड बन गए हम। समझो कि सभ्य के प्रेयर माउंटेन लगातार हजूरी के बताते रहते हैं कि भैया छुटकारा यही है, यही सब कुछ मिल सकता है, कहूँ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये जीवित परमेश्वर है, ये जीवित हजूरी है। यहाँ हमको छुटकारा हुआ है, तू भी आके देखो, तोरो मिलेगा छुटकारा। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। छुटकारा, छुटकारा, तो चिल्लाए, चलिए टेस्टमनी के परमेश्वर का थैंक्स करें। छुटकारा, 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। ओ छुटकारा, 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 छुटकारा। तो आप बताएं ब्रदर, जो लोग आज भी नशे में, ऐसी हालत में, आप बता रहे कि आप नशा अपने पर से छोड़ ही नहीं पाते थे, लेकिन चर्च जाके आपने छोड़ा प्रार्थना के बाद। Yes. तो जो आज लोग, बहुत से लाखों लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, चर्च में भी बैठे हैं, तो आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप इन्हें? कहना चाहते यही कि जीवित चर्च के हिस्सा बनेगा तब भी छूट सकता है। क्या कि हम बहुत बार कोशिश करके देख लिए हैं
नहीं कोई छोड़ा सकता है। यही जीवित परमेश्वर है जो हर चीज से छोड़ा सकता है। हमारे पास बहुत कर्जा हो गया था नशे करते करते, आज तक हिसाब करते करते भैया आप पैसा सारा छोड़ दिए, नशा सब खत्म हो गया। 2024 में आदम सारा कर्जा भी खत्म हो गया, आदम बिल्कुल ब्लेस है और स्वस्थ भी है और दम ब्लेस है। अपने टोला नगर महल में दम देखता है लोग तो कहता है कि नहीं भैया ये सब लगातार यीशु मसीह के मानता है, यीशु के हजूरी में जाते रहता है। तो आप बताएं फिर पहले आप नशा बेचने का काम करते थे, यस। अब क्या काम करते हैं आप? अब हम सुसमाचार करते हैं और प्लम्बरिंग लाइन में काम करते हैं। पंपलेट हमारा डिक्की में रहता है, जो लेबर मिस्त्री मिलता है वो कहते हैं कि भैया तू नशा करते हो, उसी के पेपर देते हैं कि ले अगर इसमें डाउट हो तो इसमें प्रेयर करवाना और ये हजूरी पर एड्रेस देते हैं, सब मोबाइल पर देखना और नहीं तो फिर हमारे साथ कांटेक्ट करना, हम तुम्हें हजूरी में ले जाएंगे जहां हम जाते हैं। ऐसा ही कर करके सबको धीरे धीरे लेके आते हैं और नए आदमी को लेके आते हैं। खड़े होकर तारीफ करें सब जन, जोर से थैंक यू जीसस बोले। उस प्यार करने वाले परमेश्वर के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। अंधेरे आधी रात मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई। हालेलुया। बैठ जाएं सब अपनी जगह पर। हम अगली टेस्टमनी को सुनेंगे सिस्टर नीफा जो कि गुरदासपुर से हैं। 30 साल पहले इस बहन के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और इस बहन को खेल आती थी, ये बेहोश हो जाते थे, कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी, इनकी आवाज़ बंद हो जाती थी। तो आज ये हमारे साथ गुरदासपुर ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं जी अपनी गवाही में। सबको जय मसीह दी। मेरा नाम नीफा है, मैं गुरदासपुर ब्रांच चों अपनी गवाही देने वास्ते जा रही हूँ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਗੈਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੱਪ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ, ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 5-5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, 15 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, 10 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 2 ਤੋਂ 3 अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। इस गवाही वास्ते मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने इनकी टेस्टमनी को ध्यान से सुना है तो 30 साल इनकी एज भी अब 60 साल है और 30 साल ये उस अटैक के नीचे रहे हैं और हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बीमार रहना शुरू हो गए थे, डॉक्टरों के पास गए, इलाज करवाया, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ पर कहीं से कोई आराम नहीं था। और इन्हें अब लगता था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, मैं एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी। पर जब इनकी बेटी ने इनको अंकुर नूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, इन्होंने चर्च आना शुरू किया, गवाहियाँ सुनी, वचन सुने। और 12/7/2020 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और सालों पुराने उस अटैक से इन्हें फ्री किया है, आजाद किया है। उस दिन से ये बिल्कुल फ्री हैं। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए जब आप विश्वास के साथ उसकी हजूरी में बने रहते हैं तो खुदा आपके जीवन में काम करता है। उसकी बड़ी दया के लिए थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर कमल की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही करीब 15 साल से ये भाई शराब, सिगरेट, गांजा, बियर, खैनी और बीड़ी का नशा करते थे, जिसके कारण डे बाय डे नशे भी इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे और बीमारियां इनके जीवन में एंटर हुई, जिसके कारण इनके अंदरला हिस्सा जो पूरी तरह से गल गया था। और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह के। मेरा नाम
कमल वामिक है और मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा गवाही देने जा रहा हूँ। गलत संगति के कारण जब मैं 18 साल का था तभी से नशा करना शुरू किया था और मेरे दोस्त ने मुझे पहली बार बियर पीने का ऑफर किया था, तभी से नशा करने का तलब लग गया था। तभी से मैंने कंटिन्यू नशा करना स्टार्ट किया। बीड़ी, सिगरेट, दारू, एक बोतल बियर, तंबाकू, जर्दा, गांजा, दिन में खैनी 7 से 8 बार करके नशा करते थे। दिन की शुरुआत नशे से ही होती थी और रात भी नशा से ही खत्म होता था। डे बाय डे मेरा नशा बढ़ने लगा और जो भी खाना खाते थे हजम नहीं होता था और तुरंत वोमिटिंग हो जाता था। नशा करने की वजह से मेरा मुंह में जख्म हो गया था और कुछ भी खाने से मुंह में जलन होता था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया और मेडिसिन लगातार खाते रहे पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पास जब नशा करने का पैसा नहीं होता था तो दोस्त के पास पैसा उधार लेकर नशा करते थे और दोस्तों के साथ रात भर नशा करते थे। मेरे वाइफ ने मुझे बार बार नशा छोड़ने की बात करती थी। हमें विचार में भी चला गया था। बाहर गलत संबंध था और रात को जाग के गलत मूवी भी देखते थे। इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरा लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। तब मेरे वाइफ पहले से ही अंकुर नरोरा मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया और जब मैं इस मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार जाने लगा तब परमेश्वर के दास ने नशा के बारे में प्रार्थना कर रहे थे। तब वो प्रार्थना को मैंने अपने जीवन में विश्वास के साथ ग्रहण किया और तभी से मेरा छुटकारा हुआ और तभी से 1 महीना हो गया और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए। आपने सुना कि इतना ज्यादा नशा इस भाई की लाइफ में बढ़ चुका था कि मुंह के अंदर एक ऐसा रोग शुरू हुआ कि मुंह के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से गलना शुरू हो गया था और फिर भी ये भाई नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे थे। लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और फिर किसी ने इनकी वाइफ को अंकुर नरोरा मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर जब इन्हें चर्च में लेके आए, ब्रांच में लेके आए, फिर 19 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया, उसी समय वो 15 साल पुराना नशे का दुष्ट आत्मा और वो बीमारियां उसी समय इस भाई को छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई उस नशे से, उस बीमारियों से पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए है, खाक करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को एक नए जीवन के साथ ब्लेस किया और हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ जी, मेरा नाम परवीन है। मैं फगवाड़ा जगपालपुर की रहने वाली हूँ। ये आपकी बेटी की टेस्टमनी है? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? 1 साल 11 महीने। और क्या प्रॉब्लम हुई थी उसको बताएं उसके बारे में आप। हाँ जी ब्रदर, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CRP ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TMC ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਲਗਾਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੀਏ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ठीक है, साडा बच्चा ठीक है। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब इन्होंने 26 जनवरी की बात है कि परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बाद इनके बच्चे की जिंदगी में जो हीलिंग थी वो एंटर हुई। उस प्रेयर को हम देखते हैं। ऑयल को लगाओ अपने बॉडी के ऊपर और यीशु मसीह के नाम में बीमारियां श्रापित होकर मरकर डेड होकर निकल जाएंगी बॉडी को छोड़कर राइट नाउ इन जीसस नेम। आप बताएं बहन, जब प्रेयर हुई और विश्वास के साथ आपने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल जो आपके पास था, क्या हुआ उसके बाद? हाँ जी, मेरे को ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਢਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। कितनों को समझ आई इस गवाही के बारे में? क्योंकि जब 2 हॉस्पिटल में से जवाब मिल चुका था तो लास्ट में कंसेंट पेपर के ऊपर साइन हो चुके थे कि बचने के चांसेस नहीं है, कि ये बहुत रिस्की है। ICU में रखा गया, प्रेयर को रिसीव किया, ICU से बच्ची को बाहर भेजा गया। उसके बाद जो है हीलिंग हुई। अभी कितने दिन से ये बिल्कुल ठीक है? 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। कोई मेडिसिन नहीं, कोई? हाँ जी, मेडिसिन तक खांदी नहीं सीगी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। तारीफ करे जोर से तालियों के साथ। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, है खुदा कहता यही मौज से हो यीशु के हजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौज से हो यीशु के हजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, 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 रूहे खुदावंद कहता यही मौज से हो यीशु के हजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। मौज से हो यीशु के हजूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर गुलाब श्री की गवाही है और ये मानसा चर्च ब्रांच के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही की 22 साल पहले ने गठिया का रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी और इनके जॉइंट्स में असहनीय दर्द रहता था, जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर था। और ये वॉशरूम भी व्हील चेयर के ऊपर जाते थे। और डॉक्टर ने जब इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको बता दिया था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज ये मानसा से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। जय मसीह की। मेरा नाम गुलाब श्री है। मैं 22 साल से बीमार रहने लगी। मैंने सारा इलाज कराया, कोई आराम नहीं मिला। मेरे पति मुझसे दूर हो गए, मैं बेड पे आ गई। हमने मरने की कोशिश की,
तो हमारी देवरानी ने बुलाया, हम चर्च में आ गई। 9 फरवरी को चर्च में आने लगी। मेरे पापा जी ने प्रार्थना किया, उसी दिन से मैं चंगी हो गई। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। इन्होंने 50 डॉक्टर चेंज किए थे, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। लाखों रुपए अपने ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन जब ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में आए, जब इन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुना और 9 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। और उस दिन के बाद से कोई गठिया नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया, हील कर दिया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे कैसे परमेश्वर ने उस 22 साल पुराने गठिए से इस बहन को आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर आज आप विश्वास करते हैं तो आज आप भी हील होंगे। आज आपकी गवाही का दिन है। आज आप भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। अपने हाथों को उठाए, हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही हरियाणा चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम हरपाल है और इनकी गवाही की 5 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज ये सिरसा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। सर जय मसीह जी, मेरा नाम हरपाल है। मैं आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी टेस्टमनी देने जा रही। मैं पिछले 5 साल तो नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। शराब सिगरेट और 2 पुड़ियां कूली पे लाए थे। चैनी खैनी जरदा हो गया जी। ते मेरे घरे भी लड़ाई बहुत होती थी, बाहर भी रात बहुत होती थी जी। और मैं इस गल लई मैं व्यभिचार ਦੇ ਵਿੱਚ जा वड़िया। डिप्रैशन च भी मैं बहुत ज़्यादा ਸੀਗਾ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰकुर नरूला मिनिस्ट्री ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, मैं ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਰੈਗੂਲਰ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ। 25 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ प्रभु ਦੇ दास ने प्रार्थना करी और मैं उस तो बाद मैनू मोमटी आई और मैं बिल्कुल आजाद आई नशे तो। मैं इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती। हालेलुया। तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए। फिर 25 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय वो नशे की दुष्ट आत्माएं इस भाई को छोड़ के गई और उस दिन से ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है, उन्हें बदल रहा है और बड़ी गवाहियों के साथ उन्हें खड़ा कर रहा है। सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? कोमलप्रीत कौर। कहाँ से आए आप? बाबा बकाला। आपकी टेस्टिमनी की जब सितंबर 2019 में जब आपकी मैरिज हुई, हाँ जी। तो मैरिज के बाद आपको पीरियड्स प्रॉब्लम आने लगी। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या दिक्कतें आई फिर आपको? मेरी शादी 2019 को हुई और बेबी प्लानिंग कर रहे थे। बाद में पीरियड्स इनरेगुलर थे और बाद में ओवरी में रिसोली आई। डॉक्टर कह रहे थे पीछे मेडिसिन खानी पड़ेगी, साल 2 साल फिर ठीक होएगा, पर मुझे विश्वास था प्रभु यीशु आप बता रहे मसीह पर। कि आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम थी मैरिज के बाद और आप बेबी कंसीव नहीं, प्रेगनेंसी आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। जब डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने जब आपके टेस्ट वगैरह किए तो डॉक्टर ने क्या बताया सिस्टर आपको फिर? उन्होंने कहा कि 2 साल लगातार मेडिसिन खाने पड़ेगी फिर ब्लेस आप होगे, प्रेगनेंसी राइट होएगी। ओवरी में आप बता रहे कि डॉक्टर ने आपको बोला कि पानी 2 पानी वाली रिसोरी थी, उसके कारण आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। तो 2 आपने लगातार मेडिसिन खाई फिर? नहीं, मैंने 1 मंथ ही खाई और पास्टर जी ने प्रेयर की। बाद में मुझे लगातार आप मेडिसिन खाते रहे लेकिन उससे भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। हाँ जी, कोई रिजल्ट। तो आप बता रहे कि जब आपकी मैरिज के बाद जब लोग आपसे पूछे थे बेबी के बारे में, जब पूछते थे तो उस समय क्या फील होता था सिस्टर आपको? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी और बहुत मैंने मारते थे आसपास वाले लोग भी, आपको बेबी ब्लेसिंग नहीं है आपके पास।
मुझे उस समय काफी निराश भी रहते थे आप फिर? हाँ जी, बहुत शर्मिंदगी, बहुत निराश रहती थी मैं बहुत रोती थी जब मुझे महीने पड़ते थे। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर अमनेस्टी के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला फिर आपको? मुझे पहले से ही पता था, मैं ऑनलाइन पास्टर जी का प्रचार बंदगी सुनती थी और आपको फेथ था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। आप हाँ ऐसी हालत में भी आप लगातार चर्च विश्वास रखा। हाँ जी। उसके बाद फिर 20 सितंबर 2020 को जब परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इस बहन को ब्लेस किया। तो पहले के लिए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। बहनों को जो प्रेग्नेंट नहीं, जो बेबी चाहती, परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है अभी राइट नाउ, और आप उस ब्लेसिंग के साथ भर रही हैं। यस, परमेश्वर कहता है मैं तेरी इज्जत को बढ़ाने जा रहा हूं। याकूब का खुदा तेरी इज्जत को बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि ये गर्भ की ब्लेसिंग तेरी इज्जत को बढ़ाएगी, क्योंकि मैं ब्लेसिंग्स को आता हुआ देख रहा हूं बहनों के ऊपर। हमने सिस्टर जैसे प्रार्थना में देखा कि जैसे प्रभु के दास ने वर्ड बोले कि परमेश्वर तुम्हारी इज्जत को बढ़ाने जा रहा है, आपके गर्भ को ब्लेस करना है। तो आप बताएं कि जैसे वो वर्ड आपने सुने, प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ फिर मैंने 1 महीने बाद चेक किया प्रेगनेंसी और मैं प्रेग्नेंट थी। मैं इस गवाही के लिए प्रभु को दास का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप बताइए जब प्रेयर रिसीव की और डॉक्टर ने बताया कि आपके राइट ओवरी में रसौलियां हैं, तो उसके प्रेयर के बाद जब आपने टेस्ट करवाए तो क्या हुआ फिर नॉर्मल आए सारे टेस्ट, नॉर्मल, कोई रसौली नहीं थी। कोई रसौली नहीं थी? नहीं थी। और आप प्रेग्नेंट हुए? यस। और परमेश्वर ने क्या दिया सिस्टर आपको? बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया प्रभु यीशु मसीह ने मुझे। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा कि वो बांझ को बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता है। जो डॉक्टर बोलते थे कि पानी वाली रसौलियां प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे, लगातार मेडिसिन भी खाई, लेकिन जैसे प्रेयर रिसीव की उसके बाद जैसे टेस्ट करवाए कोई रसौलियां नहीं आई, सारी रसौलियां उसी समय गायब हुई। परमेश्वर ने शर्मिंदगी को खत्म किया और बेबी बॉय के साथ इस बहन की इज्जत को, इनकी महिमा को रिस्टोर किया। परमेश्वर ने तारीफ करे सब जन। थैंक यू जीसस। बोले उसी परमेश्वर के नाम को महिमा देती रहे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पातुली चर्च ब्रांच की गवाही है और इस ब्रदर का नाम निमाई मॉन्डल है और इनकी गवाही के 44 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू किया। ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा का नशा करते थे और घर से ये पैसे चोरी करके, उधार पैसे मांगकर ऐसे ये नशा करते थे, जिस कारण इनकी पूरी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे इन्हें आजाद किया है। मेरा नाम निमाई मंडल है। मैं कोलकाता पातुली चर्च ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 61 साल है। जब मैं 17 साल का था, मैं गलत संगति में चला गया। गलत संगति में जाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा नशे करने लगा। एक दिन में मैं 2 पैकेट बीड़ी, 1 पैकेट सिगरेट और हाफ बोतल शराब की पी जाता था और मैं गुटखे भी खाता था। दिन की शुरुआत मेरी नशे से होती थी और जब मेरी मैरिज हुई उसके बाद मेरी मैरिज लाइफ भी नशे की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मैं अपने दोस्तों से भी पैसे उधार लेके नशा करता था। मेरी वाइफ मुझे छोड़कर अपने मायके चली जाती थी, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। मैं बहुत बीमार रहने लगा। मैं खुद से नशा छोड़ने की बहुत बार कोशिश की, मगर मैं छोड़ नहीं पा रहा था। फिर मुझे अंकुर मिनिस्ट्री का पता चला और परमेश्वर के दास द्वारा प्रेयर रिसीव करने के बाद अब मेरी लाइफ पूरी तरह से ठीक है। अब मैं कोई नशा नहीं करता और अब मुझे कोई भी बीमारी नहीं है और मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 31 दिसंबर 2023 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी नशे वाले लोगों के लिए और उस दिन इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था और जैसे रिसीव किया था परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया। उस नशे से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें।
जोर से तारीफ करते जाए परमेश्वर की। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? क्या? आपका नाम क्या है? अभिमन्यु कुमार। कहाँ से आए आप? यूपी के कुशीनगर जिले से। आपकी टेस्टमनी के 2012 से आप लगातार बीमार हो चुके थे जी। और आपको पेट का रोग शुरू हुआ था जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो क्या रोग था, क्या क्या दिक्कतें आती थी उसके कारण आपको। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही यह है कि मुझे 12 साल से लीवर का प्रॉब्लम था। जब मैं दवा लेता था तभी मुझे भूख लगता था, जब दवा नहीं लेता था तो मुझे भूख नहीं लगता था। 12 साल से ये प्रॉब्लम चलता रहा। उसके बाद से मैं 2024 में अक्टूबर 27 अक्टूबर को मैंने यहाँ आया। आप बता रहे कि अगर कोई भी खाना आप खाते थे जी, आपको वॉमिटिंग आ जाती थी जी, खाना तक आपको पचना पूरी तरह से बंद हो चुका था जी। तो उसके कारण आप बता रहे कि आपका वेट भी बहुत ज्यादा कम हो चुका था जी, बहुत कम हो चुका था। 84 से 64 हो सकता था। उसका बॉडी में बहुत वीकनेस थी आपकी जी। क्या क्या दिक्कतें आती थी और आपको? चक्कर उक्कर आता था, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता था मुझको। उसके बाद से मैंने यहाँ 27 अक्टूबर 2024 भाई बता रहे कि इनकी लाइफ ऐसी थी, ऐसी हालत है कि बिना दवाई के बिल्कुल खाना नहीं खा सकते थे। इन्हें भूख लगनी पूरी तरह बंद हो चुकी थी, खाना इन्हें पचता नहीं था। अगर थोड़ा सा भी खाना खाते थे उसी समय इस भाई को वॉमिटिंग आ जाती थी और सुबह या शाम को ही खाना खाते थे 1 या 2 बार। इनका वेट पूरी तरह से कम हो चुका था, 20 किलो इस भाई का वेट कम हो चुका था। इतनी वीकनेस से कहीं पर भी गिर जाते थे, चक्कर आते थे। अन्य जगहों पर भी गए, बंगाल में गए अपने इलाज करवाने के लिए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो 12 साल लगातार इस भाई ने भूख लगने वाली दवाई खाई। लीवर का रोग इतना ज़्यादा बढ़ता रहा कि 12 साल मेडिसिन खाने के बावजूद भी इस भाई का वो रोग जा नहीं रहा था। तो उसके बाद ऐसी हालत में किसी ने इन्हें अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तो लगातार ये भाई ऑनलाइन भी चर्च के साथ जुड़े रहे और लगातार चर्च आना भी इस भाई ने स्टार्ट किया। और जैसे ये भाई गवाहियों को सुनते थे एकदम से उम्मीद इनकी लाइफ में जागी कि अगर मैं चर्च जाऊंगा, अगर मैं लगातार प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दूंगा तो यीशु मसीह मुझे हील करेंगे, मैं जल्दी नहीं मरूंगा। उसके बाद इस भाई का फेथ बढ़ा। उसके बाद फिर जनवरी 2024 में 27 अक्टूबर 2024 में जैसे ये भाई चर्च में पहली बार आए थे और जब परमेश्वर के दास से प्रार्थना की तो पहले के लिए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। इसीलिए उसने आत्मा में ये वर्ड दिया कि मेरे लोगों को बोल कि एक और कदम उठाएं, पीछे ना हटें, थके ना, अके ना, एक और कदम उठाएं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप एक और कदम उठाएं, फास्टिंग शुरू कर दें, विश्वास को और बढ़ाएं, प्रेयर लाइफ को और बढ़ाएं। तो ब्रदर जैसे परमेश्वर के दास ने इंस्ट्रक्शन दे कि एक कदम और उठाएं, तो आप बताएं कि आपने उसके बाद क्या किया? फिर आपने उसके बाद से मैं यहीं पे रुक के 3 दिन का फास्टिंग किया था। उसके बाद फास्टिंग करने के बाद से मैं यहाँ घर चला गया। जब घर वहाँ गया तो मैंने 7 दिन का उपवास किया। मुझे नहीं पता कि कैसे मैंने उपवास कर लिया। उसके बाद से 3 दिन का उपवास किया, डे नाइट मतलब रखा था। उसके बाद से मुझे बिल्कुल भूख लगना बंद हो गया। 25 दिसंबर को जब बंद हो गया तो उसके बाद से मैंने 3 दिन का और फास्टिंग रखा। तो उसमें मैंने रो कर प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने बोला कि प्रभु जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप मुझको चंगाई नहीं मिलेगा, चाहे कहीं किसी से भी ले हैंड करा ले। उसके बाद से जब ले हैंड की बात आई तो मैंने रो कर प्रार्थना किया तो प्रभु से कहा, तो प्रभु कहने लगे प्रेयर में आके, प्रभु के दास अपोस्टल जी के रूप में आके मेरा ले हैंड करने लगे और कहे यहाँ चर्च में आने के लिए। तो मैंने उसी दिन उतावला हुआ यहाँ आने के लिए। तो उस टाइम तो मैं नहीं आया, बल्कि 20-25 दिन के बाद मैंने यहाँ आया। तो इसलिए प्रार्थना के बाद, उस लेन के बाद आप पूरी तरह आजाद हैं। हाँ, अब कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। अगर आप ध्यान से इस गवाही को सुन के 12 साल से इस भाई को पेट का रोग था और जैसे प्रभु के दास ने इंस्ट्रक्शन दी कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है एक और कदम उठाएं और बड़े परमेश्वर ने, तो इस भाई ने पहली बार जिंदगी में परमेश्वर के दास के वचन को सुना था और इस भाई ने फास्टिंग करनी स्टार्ट की और जैसे वर्ड को फॉलो किया और वो 12 साल पुराना रोग, पेट का रोग, वो शर्मिंदगी
दिनों में खत्म हुई और अभी भाई पूरी तरह से आजाद है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले सब जन, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोलते हैं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। मेरी खुशियां दी